Hello students, welcome to our channel that is Intermediate Marwari College and this channel is for students who opted the computer as an optional subject. So computer आज हम लोग पढ़ेंगे C++ के प्रोग्राम्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और साथ ही साथ कुछ C++ प्रोग्राम को भी देखेंगे उनके आउटपुट के साथ. So in 1979 computer scientist Jarner Strastrup began his work C with classes, and in 1983 it was renamed from the C with classes to C++. New features were added along with the classes. So Jarner Strastrup is the name of the developer और उसका नाम पहले था C with classes और उसके बाद उसका नाम 1983 में इसका नाम हो गया C++. So in 1985, first edition of C++ programming language was released. In 1989, the second edition of C++ was released. In 1991, updated second edition of C++ with new features was released. So C++ is a standardized language by ISO Working Group. In 1998, after the second update edition, C++, the ISO Working Group standardized C++ the first time, which is known as C++ 98. Now in 2003, it published a new version of C++ standard called C++03, which fixed problems identified. Now in 2011, new version of C++11 standard was released and with the adding numerous new feature. So in 2014, the C++14 was released and the various new editions are in pipeline for 2017. Now what is C++ compiler? तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ट्रांसलेटर होता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज में 0 and 1 में convert करता है. So compiler translate the code as a whole and show all the errors existing in the code, while interpreter translate the code line by line. That is the basic difference between compiler and interpreter. So compiler say extension name OBJ. The object file consists of binary code and computer can easily read this file. So after compilation, program run and it shows output on the screen. तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं आपको प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, उसके बाद उसको रन कीजिए. जब भी हम प्रोग्रामिंग आपको बताए हैं तो कहे हैं पहले प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, तो उसमें एक्सटेंशन नेम बनता है .obj. So compiler translate and run the program as a whole, so it creates another file that is called executable file with the extension name .exe in the same folder. So this file can be run directly, while interpret, translate and execute code line by line, so it does not create any object file. So सबसे पहले आपको in C++ language a compiler is used to translate the code. So different types of compiler available है. सब आपको टर्बो सी, आपको यहाँ पर देखिए ये टर्बो सी एडिटर है जिसमें आपका एक्सटेंशन नेम .cpp होता है. ये आपको टर्बो C++ है, ये आपको लोड करना होगा. So नेक्स्ट आपको उसमें लाइब्रेरी में जाके चेंज करना होगा. बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स लाइब्रेरी इज डिसेबल इन टर्बो सी. So first of all, enable it by clicking the checkbox from the option menu and the linker and then libraries. इस तरह से इसको आपको चेंज करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्लिक ऑप्शन मेनू एंड द सेलेक्ट डायरेक्टरीज. यहाँ डायरेक्टरीज में आके आपको इसका पाथ सेट करना पड़ेगा C:\TC/include. तो सारे आपके जितने भी फाइल रहेंगे वो आपको अवेलेबल होगा. नाउ हाउ टू रन द प्रोग्राम. सो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद प्रोग्राम्स कोड अवेलेबल है एंड यू हैव टू राइट द कोड एडिटर और कॉपी टेक्स्ट कोड of the program and the paste it onto notepad and save the file with the .cpp extension name. इस तरह से आप कंपाइल करेंगे और रन करेंगे. कंट्रोल F9 से कंपाइल होगा
ऑल्ट F9 से कंपाइल होगा, कंट्रोल F9 से रन होगा। ऐसे कंट्रोल कंपाइल एंड रन ऑप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मेनू। नाउ अब हम लोग वन बाय वन एक एक प्रोग्राम को देखेंगे, किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू जस्ट प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन हेलो वर्ल्ड ऑफ C++। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h, that is the preprocessor or header file for the output stream. Hash include conio.h, that is the header file for clear screen function. Void main function of the program. Then curly braces clr build the function with the used screen clear. Then cout double quotation में hello world of C++. आउटपुट स्टेटमेंट है get ch बिल्ट इन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो देखिए इसका आउटपुट आएगा इस तरह से आपकी स्क्रीन पर, हेलो वर्ल्ड ऑफ C++। दिस प्रोग्राम्स आउटपुट विल बी दिस। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू स्वैप द टू नंबर्स बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब दो नंबर है, दोनों नंबर को आपको इंटरचेंज करना है, दोनों का वैल्यू को। मीन्स A में 10 है, B में 20 है। तो आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ A विल बिकम डिस्प्ले 20 एंड B विल डिस्प्ले 10। मतलब अभी A का 10 है और B का 20 है, तो आपको इसको स्वैप करके दिखाना है यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले iostream.h, देन conio.h, देन void main कर्ली ब्रेसेस clr तीन वेरिएबल लेना है। एक दो में तो वैल्यू फिक्स है, A में 10 B में 20, और तीसरा वेरिएबल यूज करके आपको स्वैप करना है। दैट्स व्हाई यू हैव टू एक्सेप्ट यू हैव टू टेक अनदर वेरिएबल दैट इज C। So there will be three variables A, B and C. A equal to 10, B equal to 20. सबसे पहले A का वैल्यू हम लोग C में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू C में आएगा तो ये C में 10 आ जाएगा। Now A will become blank। फिर A में हम लोग B का वैल्यू डालेंगे, B में का वैल्यू था 20 तो वो A में आ जाएगा। ठीक है, अब B हो गया ब्लैंक तो C में जो वैल्यू था वो B में आ जाएगा। मतलब B का जो वैल्यू था वो तो A में चला गया और C में था मेरे पास 10 तो वो आ गया B में। तो C out the value of A is 20 and C out the value of B is 10। दोनों का वैल्यू चेंज हो गया। एंडल यहाँ पर हम लोग लगाए हैं, दैट इज फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट इन नेक्स्ट लाइन। एंडल एंड लाइन, इस लाइन के बाद वो एक न्यू लाइन में चला जाएगा। तो ये देखिए आउटपुट जो आएगा वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट है द वैल्यू ऑफ A इज 20, द वैल्यू ऑफ B इज 10। पहले था वैल्यू ऑफ A इज 10 एंड B इज 20। अगर आप यहाँ पर मैसेज दिखाना चाहते हैं कि क्या वैल्यू था तो यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ A इज A एंड L द वैल्यू ऑफ B इज B। तो ये दिखाएगा द वैल्यू ऑफ A इज 10, द वैल्यू ऑफ B इज 20, और आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ A इज A, वैल्यू A इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ B इज 10। इस तरह से दोनों का वैल्यू चेंज होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम इज ऑफ अर्थमेटिक यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्वेश्चन है प्रोग्राम टू इंटर टू नंबर्स एंड शो देयर सम। दोनों दो नंबर लेना है और दोनों के सम को डिस्प्ले करना है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main clr दो वेरिएबल है, एक है फर्स्ट एक है सेकेंड और तीसरा वेरिएबल है सम। सबसे पहले C out इंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, C in first, enter the value of second number, C in second, then sum नाम के वेरिएबल में दोनों को जोड़ के डाल रहे हैं, sum equal to first plus second, then C out sum is sum, मतलब C out sum ये दोनों के जोड़ के डिस्प्ले करेगा get ch। so the output will be look like this, enter the value of first number, आप पहला नंबर डालेंगे, सपोज यहाँ 10 डाला है, then enter प्रेस करेंगे तो it will display enter the value of second number 20, और यहाँ दोनों का सम करने के बाद जो सी आउट स्टेटमेंट है द सम इज जो दोनों को जोड़ के आया 30 ये डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक रिलेटेड विद द अर्थमेटिक ऑपरेटर सो यूजिंग द सम। और इसी क्वेश्चन में आपको डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बोला जाएगा तो आप उसको वन बाय वन नीचे कर सकते हैं यूजिंग द
अर्थमेटिक ऑपरेटर, माइनस के लिए है हाइफन साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए है एस्टेरिक साइन, उसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू सेंटीग्रेड। hash include iostream.h, hash include conio.h, void main CLR एक है फ़ारेनहाइट में और एक है टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, मतलब आपको सेंटीग्रेड में करना है। तो आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लेना है, उसको एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। इंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, उस वेरिएबल का नाम है एफ टेम्प, तो सी इन करेंगे एफ टेम्प। देखिए यहाँ पर चूंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो रिलेटेड है डेसिमल के से, ये फॉर्मूला जो है टेम्परेचर का, दैट इज टेम्परेचर फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9.0। तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें कि डेसिमल यूज किया गया है। तो बेटर होगा कि आप उसका डेटा टाइप फ्लोट ही डिफाइन करें या डबल डिफाइन करें। तो फ्लोट इज द डेटा टाइप विच इज यूज टू एक्सेप्ट द डेटा विद द डेसिमल पॉइंट। तो फ्लोट, एफ टेम्प और सी टेम्प, इट डिपेंड्स अपॉन, नेम इज डिपेंड्स अपॉन यू, आप एफ और टी सी भी ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर है इंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, सी इन एफ करेंगे, और चूंकि सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो सी टेम्प इक्वल टू एफ टेम्प माइनस 32.0 इंटू 5.0 डिवाइडेड बाई 9.0। दिस इज द फॉर्मूला। ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस है, ये फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। सेंटीग्रेड में करने के लिए माइनस 32.0 इंटू 5.0 डिवाइडेड बाई 9.0, और इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। ये बॉडमस रूल फॉलो करता है, आपका जो C++ कंपाइलर है वो बॉडमस रूल फॉलो करता है। तो एफ टेम्प माइनस 32 को ब्रैकेट में, और सबसे पहले एक ब्रैकेट और लगेगा जो कि लास्ट में 9.0 से बंद होगा, और फिर लिखेंगे सी आउट द सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज सी टेम्प और गेट सी एच लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज करेंगे। सो इंटर द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट इज, अगर हम 90.6 दिए हैं तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखाएगा 37। so this is the फॉर्मूला, और आपको 0 यूज किया है, इसलिए आप जहां पर आपको लगे कि आपका आंसर डेसिमल में आ सकता है, there you have to use the float data type. Next question is related with find out the symbol from ASCII. ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange. So this program is find out the symbol for ASCII character set. जो C और C++ लैंग्वेज है वो ASCII character set को फॉलो करता है। आपको बताया गया है कि C और C++ में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंस करता है। तो कैपिटल ए का आस्की वैल्यू है 65, स्मॉल ए का है 97। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आप एक कैरेक्टर लेंगे और उसका नंबर लेंगे और उसका आप कैरेक्टर चेक करेंगे कि किसका आस्की वैल्यू क्या है। तो हेडर फाइल लगा लेंगे, दोनों हेडर फाइल iostream.h, conio.h और void main CLR int n n1 दो इंटीजर है और कैर भी दो है ch और ch1। सो इंटर एनी नंबर, सबसे पहले हम नंबर लेंगे, n एक नंबर ले लिए, उसको हम कैरेक्टर डेटा टाइप जो ch लिए थे इसमें स्टोर कर दिए। उसके बाद डिस्प्ले करेंगे द कैरेक्टर ऑफ गिवन नंबर इज ch, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ गिवन नंबर इज ch। सी आउट एनी कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड, सी इन ch1 को n1 में डालेंगे, द न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब ये क्वेश्चन जो है दोनों को डिस्प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो नंबर हम डाले हैं उसको एक कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर कर लिए। सो इंटर एनी नंबर 65 डाले, तो 65 को ये क्या डेटा टाइप इसका डिफाइन किए हैं, तो ये ch में स्टोर हो गया और ये आपको दिखा दिया कि इसका डेटा नंबर A है। नेक्स्ट जो है वो नंबर लेंगे और उसको कैरेक्टर लेंगे, उसको नंबर में डालेंगे। जी लिए हैं, उसका नंबर दिखा रहा है 103। सो दिस इज फॉर
accepting the number. So that's all from today video. Thank you. Bye bye.